Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to discuss a very powerful poem, The Dance of the Anuj by Kamala Das. So Kamala Das was born on 31st March 1934 and she died on 31st May 2009. So this poem, Dance of the Anuj, is a powerful poem where Kamala Das has penned down the problems or the things that are faced by these Anuj. So Anuj is a person who is half male and half female, and through this poem she delivers their problems, that these people, these Anuj, how they face problem in society, like they are denied the basic jobs, and how they struggle through their life to get a job, to get education, and their conditions that is not understood by the society. So all these things she has tried to bring out the problems of these people. So before I start the video, those who are watching the video, please do subscribe my channel. So now start. It was so hot before the Anuj came to dance. Wide skirts go round and round. So it was hot means it was summer season. It was definitely, India is a hot country, and here most of the time it's hot. So when it was hot, it was summer time, and during this time a group of Anuj, they came dancing. And what were they wearing? They were wearing skirts. Skirts go round and round. They were wearing skirts and they were rolling, moving round and round. Cymbals richly clashing and anklets jingling, jingling, jingling. Cymbals is a musical instrument that these people, they were playing. Richly clashing and anklets. Anklets means जो पैरों में पायल पहनते हैं वो उसे बोलते हैं एंकलेट्स. तो उन लोगों ने अपने पैरों में पायल भी पहनी हुई थी, जिससे जिंगलिंग साउंड आ रहा था, और वो बहुत खुशी से वो नाच रहे थे. Beneath this fairy gulmohar with long braids, like dark eyes flashing, they dance and they dance. So beneath the fairy gulmohar, तो एक गुलमोहर पेड़ के नीचे वो डांस कर रहे थे, और वो बहुत खुशी से वो डांस कर रहे थे. विथ लॉन्ग ब्रेड्स. लॉन्ग ब्रेड्स मीन्स उनकी जो चोटियाँ थी, जो पोनी टेल बांधते हैं पीछे इंडियन विमेन, वो बहुत लंबी थी, उनकी चोटी बहुत लंबी थी. डार्क आइज फ्लैशिंग, दे डांस एंड दे डांस, और उनकी आंखें बहुत डार्क थी, एंड दे वर मूविंग एंड डांसिंग. और वो ऐसे मूव करते हुए डांस कर रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर करके वो डांस कर रहे थे. यूजुअली दिस पीपल, दे कम टू द पीपल्स होम. जो वो लोगों के घर आते हैं जब लोग अपना कुछ नया काम शुरू करने वाले होते हैं, जब उनका नया घर होता है, या फिर घर पे कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, तो दिस पीपल, दे कम टू टेक मनी एंड गिव ब्लेसिंग्स इन रिटर्न टू द पीपल. और वो आके उनके ब्लेसिंग्स लोगों को देते हैं. ऑन दाई डांस टिल दे ब्लीड. और वो लोग तब तक डांस करते रहे जब तक उनके पैरों से ब्लीडिंग शुरू नहीं हो गई. वो इतने खुशी से वो डांस कर रहे थे. दे वे ग्रीन टैटूज इन देयर चीक्स, jasmine in their head, some were dark and some were almost fair. So these people, some of the Anuj, they had tattoos, green tattoos in their cheeks. उन्होंने अपने गाल पे टैटू बनाया था. जैस्मिन इन देयर हेयर, और अपने हेयर पे उन्होंने जैस्मिन के फ्लावर्स जो होते हैं वो लगाए हुए थे. सम वेर डार्क एंड सम वेर फेयर. कुछ लोग जो थे कुछ डार्क कलर के थे, और कुछ लोग वो लाइट कलर के थे. Their voices were harsh, their song melancholy, they sang off. सो उनके जो वॉइस थे वो बहुत हार्श थे. दे हैव अ टिपिकल टाइप ऑफ वॉइस, और उनके जो गाना जो गा रहे थे उस गाने में बहुत दर्द था. डेफिनेटली दीज पीपल, दे आर नॉट दीज टाइप ऑफ पीपल बाय देयर चॉइस. उन्होंने ये अपने लिए खुद से चूज़ नहीं किया है. गॉड हैव मेड देम लाइक दैट. तो दीज पीपल, दे आर ऑलवेज वेरी सैड that they are shown or portrayed as a typical outcast in the society. Like when people see these Anuj, they behave in a certain order. तो इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, that they are not treated properly by the people, and that is why in their heart they are always very sad कि उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, और उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ता है. They sang of lovers dying and or children left unborn. तो वो जो गाना गा रहे थे वो किस बारे में था? They were singing the song of lovers. जैसे lovers जैसे गाना गाते हैं वैसे गा रहे थे, और वो बच्चों के बारे में गा रहे थे, for the unborn child.
or in certain things you can say they were giving blessings to the people, and they were singing very joyfully. Some beat their drums, others beat their sorry breast. So some beat their drums, तो कुछ जो अनुज थे they were beating drums and they were dancing, and some other people they were beating their sorry breast. Why the poet has written here sorry breast? Because क्योंकि these people they are neither men nor women, so that is why some of the anuj they don't have the breast of a female. That is why the poet has described here sorry breast. And veiled and withered in vacant ecstasy. So these people they have a certain feeling of vacant in their heart. उनके हार्ट में एक थोड़ा हमेशा एक खालीपन रहता है कि उनको लाइफ में जो चाहिए वो चीज़ उनको मिलती नहीं है, और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. They were thin in limbs and dry like half-burnt logs from funeral pyre. They were thin and limbs means जो उनके हाथ पैर होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर पुअर पीपल. डेफिनेटली दिस अनुज दे आर नॉट वेरी रिच पीपल, लैविश, दे आर नॉट लिविंग अ लाइफ लैविश लाइफ. वो गरीब हैं, उनको कभी खाने को मिलता है, कभी खाने के लिए वो नहीं मिलता. दे बेग फ्रॉम अदर पीपल एंड दे स्ट्रगल. तो इन सब चीज़ों में उनके बॉडी से पता चलता है कि दे आर पुअर, वो रिच क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई फ्रॉम देयर बॉडी, देयर क्लोथ्स, यू कैन सी दैट दे आर पुअर पीपल एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. A drought and a rottenness were in each of them. So their mind is like a drought, means no hope, no life, nothing very blissful is happening in their life. उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कोई उम्मीद नहीं है उनके पास, कोई खुशी नहीं है. बट एज दे आर ह्यूमन बींग्स दे आर लिविंग देयर लाइफ. वो जितना भी मिलता है उनको उनकी लाइफ में, वो उसी चीज़ में खुश रहते हैं और उसी से अपनी लाइफ वो लीड करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट देम, दैट दे लीड देयर लाइफ विदाउट एनी कंप्लेंट्स. वो किसी से कंप्लेन नहीं करते, दैट दे आर लाइक दैट, जस्ट दे लीड देयर life. Even the crows were so silent on the trees. So by seeing the Anuj, the crows were also very silent in their trees. वो crows भी बहुत चुपचाप थे. And the children wide-eyed still and were all watching these poor creatures' convulsions. The children, those who were standing there, they were watching these Anuj, and all the other people who were standing there, सब उनको वहाँ पे देख रहे थे. The sky crackled then, thunder came and lightning and rain. And then the sky crackled with thundering and a merged rain, means little rain, और थोड़ी सी वहाँ पे बारिश हुई. That smelt of dust in attics and the urine of lizards and mice. Little rain came means बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई. And with this atmosphere, with the little rain, the atmosphere was filled with smells like urine of lizard and mice. और उस थोड़ी सी बारिश में जब हुई तो वो पूरा एटमॉस्फेयर से ऐसे स्मेल आने लगा जैसे वहाँ पे लिजर्ड्स और माइस ने वहाँ पे यूरिन उनका पड़ा है वहाँ पे. सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन और गुड स्मेल. तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो हियर दिस शोज नेगेटिविटी. दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और जो पोएट हैं वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं बेसिकली थ्रू दिस पोएम. शी वॉन्ट्स टू टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ द अनुज, कि दैट दे आर नॉट, देयर लाइफ इज़ नॉट वेरी ब्लिसफुल, दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड दे आर नॉट वेरी रिच, बट रैदर द थीम इज एम्प्टीनेस एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स. दीज अनुज दे हैव अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन देयर हार्ट. हमेशा उनके दिल में एक खालीपन रहता है. एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, उनके दिल में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, विश हैं, जो every human being they want to fulfill their wish and desire, but these Anuj they also have certain desires कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं. उनके दिल में हमेशा खालीपन रहता है. ये चीज़ पोइट ने इस पोएम के थ्रू हमें दिखाने की कोशिश की है कि उनके लाइफ में बहुत सारी एम्प्टीनेस है, बहुत सारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, तो वो पूरा करना चाहते हैं बट वो नहीं होती हैं. बट स्टिल देन आउटसाइड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do subscribe my channel. Thank you.